गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट फर्स्ट में लास्ट टॉपिक दैट इज़ क्वालिटी फैक्टर ऑफ द वेवगाइड। हमने क्वालिटी फैक्टर पढ़ा है। दिस इज़ रिलेटेड विद द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व इन एलसीआर सर्किट, जहाँ हमने कर्व प्लॉट किया था कि उसकी शार्पनेस कितनी होता है उस पर डिपेंड करता है। दैट इज़ एफ आर बाई दी डेल्टा आप लिखा था आपने, एफ आर दैट इज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी और डेल्टा आप लिखा था आपने दैट इज़ दी फ्रिंज विड्थ, फ्रिक्वेंसी विड्थ या एफ टू माइनस एफ वन, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पावर फ्रिक्वेंसीज। आज हम वेवगाइड के लिए क्यू फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज रिलेटेड विद द पावर ट्रांसमिटेड एंड द पावर लॉस। इट इज़ नोटेड दैट द रेजोनेंट line length are comparable to the circuit dimension at the microwave frequencies. This is the important conditions कि जो लाइन्स है उसकी लेंथ वो सर्किट डायमेंशंस के बराबर होती है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पे, सो दैट द लाइन्स आर सुटेबल फॉर द रेजोनेंट एंड द इंटर रेजोनेंट सर्किट। Means now the waveguide can be treated as a resonant device. So the formula or the physical quantities related with the resonance can be used for the waveguide also. So using the basic definition of the quality factor, we can write Q equal to the omega multiplied by the energy stored per unit length divided by energy lost per unit length per second. That is related with the power. So in the waveguide, energy propagates at the group velocity vgz. Along the z, the wave is propagating. So the group velocity is vgz. Hence the energy transmitted per second is vgz multiplied by the energy stored per unit length. Means that is related with this one. So the energy stored per unit length can be written as 1 divided by vgz, group velocity along the z-axis, multiplied by the power transmitted. So the pt divided by vgz, that is energy stored per unit length. Now using the second we can write quality factor equal to the, हमने लिखा ये w divided omega divided by the vgz, power transmitted divided by power lost per unit length. So the omega is omega divided by twice alpha c vgz, and यदि हम इसको लिख सकते हैं vgz को in terms of the phase velocity, so we can write quality factor the omega divided by twice alpha c, that is the conductor attenuation per unit length, alpha c लिखते हैं अपन. So twice alpha c vp multiplied by the root of 1 minus fc by f का square, where alpha c is conductor attenuation per unit length. The waveguides are characterized by low values of the alpha c as one. We know that waveguides में alpha की attenuation coefficient जैसे कम होता जाता है, hence we say the quality factor will be increases. Hence waveguide section may be have the very high quality value q value, because for this formula we can use q is inversely proportional of the alpha c. Such section find extensive applications in the micro resonant and the filters. मतलब उन केसेस के लिए जिनमें अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट बहुत कम होता है, वो एक अच्छी क्वालिटी फैक्टर वाले डिवाइसेस हो जाते हैं और इनको हम काम में लेते हैं माइक्रोवेव में रेजोनेटर एंड फिल्टर्स के रूप में. सो यूजिंग द अबव इक्वेशन थर्ड वी कैन राइट क्यू डब्ल्यू इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई वी जी जेड डिवाइड बाई ट्वाइस अल्फा, और यदि हम ओमेगा और वी जेड को बीटा की फॉर्म में लिखना चाहें फेस कोएफिशिएंट, सो द बीटा बाई द ट्वाइस अल्फा की फॉर्म में आ जाता है ये. सो बीटा इक्वल टू वी हैव राइट ओमेगा बाई वी जेड. सो to anticipate losses in the dielectric waveguide, we sometimes make use of the concept of the complex frequency. वो था वेवगाइड के लिए. अब हम डाइलेक्ट्रिक क्यू फैक्टर्स की बात करना चाहते हैं. तो अधिकतर हम ओमेगा को इस डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के लिए हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. सो ओमेगा इज इक्वल टू द ओमेगा 1 प्लस जे या आयोटा ओमेगा 2, जे इज आयोटा हियर, एंड वी कैन डिफाइन क्यू डी क्वालिटी फैक्टर फॉर द डाइलेक्ट्रिक लॉस. The dielectric loss Q is defined as the ratio of the imaginary component of the frequency to the real component of the frequency. So QD equal to the omega 2 by the omega 1 by using the above equations, and
The propagation constant we know very well, the gamma equal to alpha plus g beta. Here gamma is for waveguide must be imaginary, और अल्फा और बीटा के यदि फॉर्मूला लिखें, इसको एक्सपेंड करके रखें, तो गामा आता हमारा रूट ऑफ के सी स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द म्यू एप्सिलॉन माइनस सिग्मा ओमेगा 2 म्यू का प्लस जे ओमेगा 1 म्यू मल्टीप्लाइड बाय द सिग्मा माइनस ट्वाइस ओमेगा 2 एप्सिलॉन। अब यदि हम चाहते हैं कि यह वेवगाइड के लिए सुटेबल हो, तो इसका मतलब हुआ कि इमेजिनरी क्वांटिटी होनी चाहिए। सो फॉर दिस द फर्स्ट ब्रैकेट मस्ट बी द नेगेटिव एंड द सेकेंड ब्रैकेट मस्ट बी इक्वल टू द जीरो। यदि पहला वो नेगेटिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाएगी और वो अटेंशन कोएफिशिएंट के बराबर हो जाएगा, और सेकेंड टर्म सीधे जीरो ही हो जाए तब भी गामा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। सो वी से फॉर द सेकेंड केस इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो कैसे मिलता है ये, सेकेंड में जो ब्रैकेट है उसको जीरो कर दिया जाए, दैट इज सिग्मा माइनस ट्वाइस ओमेगा 2 एप्सिलॉन इक्वल टू जीरो। सो जो ओमेगा 2 आ रहा है, इमेजिनरी कंपोनेंट आ रहा है फ्रिक्वेंसी का, वो आ रहा ओमेगा सिग्मा डिवाइड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन। और यदि इसको हम और दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो इस क्यू डी को हम लिख सकते हैं सिग्मा डिवाइड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन ओमेगा 1 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ओमेगा 2 की वैल्यू हमने लिखा सिग्मा बाय द ट्वाइस एप्सिलॉन। ये और भी ओमेगा और ओमेगा 2 टर्म्स में इसको ज़्यादा इमेजिनरी यूज़ कर सकते हैं। सो इन जनरल द टोटल वैल्यू ऑफ द क्वालिटी फैक्टर फॉर द वेवगाइड, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इट। फर्स्ट द वेवगाइड रिलेटेड where the no dielectric loss, and the second for the dielectric, that is QD. So 1 by QT equal to the 1 by Q omega plus W plus 1 by QD. So the QT मिल जाता है QW QD divided by QW plus QD. So this is all about the total quality factor of the waveguide. Now the waveguide dimensions and electrical breakdown. The selection of the waveguide dimensions largely depends on the use of which the waveguide are to be put. For example, waveguide is used as the power line in the lab. So the dimension of the waveguide should be in such a way that the transmission of the power takes place on a single desired mostly fundamental mode in the given frequency band. मतलब हमें वेवगाइड का डायमेंशन इस तरह से डिसाइड करना चाहिए कि हमें जो वो कौन सा मोड इसमें से ट्रांसमिट करना चाहते हैं, टीई चाहिए, टी मोड चाहिए, उसका कौन सा ब्रांच चाहिए हमें, डोमिनेंट मोड है, फंडामेंटल मोड है, या और कौन से मोड काम में लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी साइज सेट करनी होती है। दूसरा द लॉसेस दैट इज द अटेन्यूएशन रिफ्लेक्शन मोड कन्वर्सन एंड द रेडिएशन लॉसेस टू बी मिनिमम। इस तरह से डिसाइड होना चाहिए कि इसमें जो अटेन्यूएशन है, रिफ्लेक्शन मोड कन्वर्सन है या रेडिएशन लॉसेस है वो कम से कम हो। इस तरह से हम उसकी डायमेंशन सेट करते हैं for to get the maximum output of it. So this is sufficient for today. Thank you.